Hello everyone. Let's do the questions which are given at the back of the first chapter. The first question is, which of the statements about the reaction below are incorrect? So you have to tell which one is incorrect. Let's write the equation first. 2PbO, lead oxide, reacts with carbon C, gives lead plus carbon dioxide gas. Okay. The first statement is lead is getting reduced, and the second one is carbon dioxide is getting oxidized. Okay, here they are asking about the oxidation and reduction, correct? So we are talking about oxidation and reduction here. So let's see where oxidation is taking place. तो देखो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड से आपको पता लगेगा कहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है और कहाँ रिड्यूस हुआ है, करेक्ट? तो यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना? यहाँ पर नहीं था पर यहाँ पर आके ऐड हो गया है. तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, राइट? वी हैव डन दिस इन द चैप्टर 5. अब लेड, पीबी लेड, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन गायब हो गया. तो वेयर lead oxide has lost oxygen, so this here where the reduction is taking place. चलो reduction और oxidation पता लग गया. अब is lead is getting reduced, अब देखो ये reduce हो रहा है ना? PbO is getting reduced. तो क्या lead reduce हो रहा है? चेक करो, ध्यान से देखो इक्वेशन को. This is lead oxide is getting reduced to lead. तो this equation, this statement is incorrect, है ना? तो next था कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxidized. तो ऑक्सीजन किसने लिया था यहाँ? कार्बन ने लिया था, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ने. तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है. थर्ड वन इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. करेक्ट. Carbon has gained the oxygen, so it's carbon who is getting oxidized. So this statement C is correct. Next is lead oxide is getting reduced. Lead oxide, here is lead oxide. Yes, it has lost oxygen, so lead oxide is getting reduced. So this is correct statement. But what we have to say, we have to tell incorrect statements. The incorrect statements are A and B. So your answer is first one. Got it? Okay. Oxidation और reduction तो हमें पता लग गया, लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी थी. If you remember, oxidizing agent and reducing agent. Remember? तो यहाँ एक short सा trick है to, if they ask, write the oxidizing agent and reducing agent in this equation. So what you will do is just write where oxidation is taking place and where reduction is taking place. At C, oxidation is taking place, correct? Fine. And who is getting oxidized? Carbon is getting oxidized. है ना? अब देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है? लेड ऑक्साइड पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो here reduction is taking place. और who is getting reduced? Lead oxide is getting reduced. फाइन. अब हमें बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. तो उल्टा कर दो, जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट. ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट. तो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. एंड हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. तो दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना? सिर्फ उल्टा कर देना. ऑक्सीडेशन वाला बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फाइन. चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग. इट्स द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ओके, सो यू हैव टू टेल व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस. सो लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट. इट्स Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3
plus 2Fe. Okay. Combination reaction. तो combination reaction में क्या होता है? Combination reaction में you know that two reactants combine and form a single product. But here it's not that case, right? यहाँ पर तो दो reactant है और दो ही product है, तो it's not a combination reaction. Next is double displacement reaction. तो double displacement reaction में क्या होता है? We get two compounds A, B, C, D. और क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में? जो दो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, वो आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, है ना? तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाता है CB प्लस AD. यहाँ पर ऐसा नहीं है. अच्छा, इजी वे में अगर आप समझना चाहो तो इफ़ यू टेक दिस एज AB प्लस C, तो D कहाँ है? D तो है ही नहीं, है ना? तो ये दिस इज़ नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक होता है रिएक्टेंट और वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में. हियर इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज हियर वी हैव टू रिएक्टेंट्स, तो ये ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि एक एलिमेंट उसमें डिस्प्लेस होता है. तो यस, यहाँ वही केस हो रहा है. ध्यान से देखो इक्वेशन को. यहाँ पर देखो एल्युमिनियम जो है ये डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, है ना? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या था आपके पास? Fe2O3 और यहाँ है Al2O3. तो Fe की जगह किसने ले ली? एल्युमिनियम ने. तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा, अब अगर यहाँ जस्टिफिकेशन भी पूछा जाए कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ड्यूरिंग द चैप्टर, राइट? तो क्या है ये, क्यों डिस्प्लेस हुआ? कौन डिस्प्लेस करता है? हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल जो होता है वो हमेशा वीक एलिमेंट को रिप्लेस करता है. तो यहाँ पे एल्युमिनियम ने अगर रिप्लेस किया है, व्हाट डज दैट मीन्स? दैट एल्युमिनियम इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन. ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीक है. फॉर दैट यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज. तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद करने के लिए आई विल गिव यू अ निमोनिक. ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका निमोनिक. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स एज यू विल गो डाउन देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, तो निमोनिक क्या है? निमोनिक है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्कुरी सेव्ड गोल्ड. ठीक है, तो इसका हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लो. प्लीज का P मीन्स पोटेशियम, स्टॉप का S सोडियम, ठीक है, कॉलिंग CA मीन्स कैल्शियम, मी M मीन्स मैग्नीशियम एंड सो ऑन. और ये रहे इन सब के सिम्बल्स, मेटल्स के सिम्बल्स. ठीक है, तो हियर इफ यू टेक सी ऑन द टॉप इज पोटेशियम. व्हाट डज दैट मीन्स? इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है. और लीस्ट कौन सा हो गया? गोल्ड. तो दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल, तो ये हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है ना? हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, इट्स अ गैस, करेक्ट? तो ये मेटल्स की सीरीज में क्या कर रहा है? इट इज़ बिकॉज जो हाइड्रोजन है ना, इट ऑल्सो शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑल्सो. ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज ये मेटल्स की शो करता है. ओके अच्छा, ये जो सीरीज है ना, इट वेरीज इन डिफरेंट बुक्स, दे हैव डिफरेंट सीरीज. उसमें भी क्या है, यही सेम होगा, लेकिन कहीं कहीं एक आधा मेटल वो रिड्यूस कर देंगे या ऐड ऑन कर देंगे. तो मोस्ट probably this will be the ones which will be used for your 10th. Okay, ठीक है? Okay, so let's move on to the next question number 3. What happens when dilute hydrochloric acid? Dilute hydrochloric acid means HCl is added to, okay, added to what? Iron fillings means Fe. तो यहाँ लिख लेते हैं हम HCl plus Fe will give what? अभी हमने देखा
कि रिएक्टिविटी सीरीज में, अब देखो चलो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, Fe और हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो कहाँ है आपका Fe इस सीरीज में और कहाँ है आपका हाइड्रोजन? तो हियर इज Fe आयरन, है ना, और हाइड्रोजन ये रहा। तो कौन है स्ट्रॉन्गर? Fe है स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन। तो इजीली समझ आ गया हमें। तो Fe क्या करेगा? इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट FeCl प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन तो डायटोमिक है ना, तो H2। अच्छा, क्या FeCl का फॉर्मूला करेक्ट है? चलो देख लेते हैं। Fe के आयनिक सिंबल क्या है? Fe का Fe2 प्लस, और क्लोरीन का -1। तो ये 1 जो है इट विल कम हियर एंड 2 विल कम हियर। तो व्हाट विल इट विल बिकम? FeCl2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला FeCl2। ठीक है, यहाँ उन्होंने बैलेंस करने के लिए नहीं कहा है, बट ट्राई टू बैलेंस इट। लेट्स सी, हाइड्रोजन इज 1 हियर वेयर एज इट्स 2 हियर, लेट्स राइट हियर 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पर अभी अभी 2 लगाया तो क्लोरीन 2 हो गया। क्लोरीन ऑलरेडी इज 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड। Iron is 1 here and iron is 1 here. So hence our equation is balanced now. ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं पूछा क्या गया है। हाइड्रोजन गैस, मतलब कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है। यस, दिस इज करेक्ट। देखो यहाँ पर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, chlorine gas and iron hydroxide are produced? No reaction takes place. अरे रिएक्शन तो हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड? नो। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर ये रिएक्शन ऐसे दिया होता, देखो अगर ये ऐसे दिया होता FeCl प्लस H2, तब हम बोलते कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों, बता सकते हो आंसर? दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस स्ट्रॉन्गर, या आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, वी नो दैट, करेक्ट। हाइड्रोजन जो है, आयरन जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट। फाइन, let's move to question number 4. And what is a balanced chemical equation? चलो ठीक है, इसको हम समझने के लिए let's write equation H2Cl2. This we have taken a very simple equation, if you remember when we started balancing the equation in our part 3, I think, right? तो यहाँ देखो, अगर आप देखोगे कि number of atoms on the reactant side, है ना, left hand side and the product side सेम है क्या? लेट्स सी, हाइड्रोजन हियर इज 2 whereas here it is 1, क्लोरीन here is 2 whereas here it's 1. तो ये number of atoms are not equal on both the sides. So this is unbalanced equation. If you remember, what is unbalanced equation known as? Write the answer in the comment box. Let me see how much you remember. ठीक है, तो फाइंड आउट करो क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। तो ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो H2, you know balancing very well now, right? तो H is 2 here whereas H is 1 here, so I will add 2 here, correct? तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 and 2. Chlorine here is 2, okay, and chlorine here is also 2. अब हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड, राइट? तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कब कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन? when the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms on the product side. तो number of atoms equal हो गए दोनों side, reactant side and product side, इसलिए equation क्या हो गई? Balanced chemical equation. चलो ठीक है, balance हो गई। Now why should chemical equation be balanced? क्यों करनी ज़रूरी है? Why? तो हमने बहुत important एक law पढ़ा था, याद है? Conservation of mass. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो
ओके इन, यहाँ इन मिसिंग है. इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो मास क्योंकि नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो मास क्या होना चाहिए? मास ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द मास ऑन द प्रोडक्ट साइड. करेक्ट. तो मास इक्वल होने के लिए द नंबर ऑफ एटम्स शुड ऑल्सो बी इक्वल. करेक्ट. तो इसलिए ये दोनों को इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. Hence it is for this reason that the chemical equation should be balanced. हो गया? चलो ठीक है. In the next video we will continue the next questions. Fine? Bye.